Hello, good morning, dear students. Welcome to DSCJ home classes. And as you know, we have taken poetry section from class 10th syllabus. And in previous videos, we have discussed very beautiful poems included in our syllabus like Prayer, Miracles, Snowdrop, An Evening Wet with Rain, My Mother at 66. So these beautiful poems written by great poets had been discussed previously uh, in previous videos. Today we are going to discuss one more beautiful poem which is in your syllabus, and it's humorous type poem, or you might have guessed what we are going to take today. A Tale of a Custard the Dragon. Yes, dear students, this is the poem we are going to discuss today. From your book, uh, Tulip series of English, this poem, The Tale of a Custard the Dragon, had been written by Auden Nash. Was an American poet. He was well known writer of light verse and best known producer of ह्यूमरस पोइट्री सॉरी। तो ह्यूमरस पोइट्री के लिए बहुत जाना जाता है ये नाम ओडेनाश। तो आज हम उसकी एक खूबसूरत पोएम हम डिस्कस करेंगे। इस पोएम में जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम तक आता है वो ये आता है कि कभी भी पोलाइटनेस को कवर्डनेस में आपने समझना चाहिए। जो शरीफ आदमी है उसको कभी भी बुज़दिल आप ना समझें। और हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत भी है कि जिस पेड़ में फल ज़्यादा होता है उस पेड़ की डालियां जो हमेशा झुकी होती हैं, ऊपर की तरफ नहीं होती हैं। और जिस पेड़ में फल ज़्यादा होते हैं लोग उसी पे ज़्यादा पत्थर मारते हैं ताकि फल वहाँ से गिरे। तो देखते हैं पोइट ने इस जो कहावत है कैसे इसको यूज़ किया है इस पोएम में। तो हमारी जो पोएम स्टार्ट होती है एक नाम से, नाउन से। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and little grey mouse and a little yellow dog and little red wagon and a trilio little pet dragon। अगर आप बच्चे थोड़ा सा ध्यान इस वीडियो में रखेंगे तो at the end of this video I assure you that you will be able to answer all the questions given in your textbook। तो क्या बोलता है? Belinda lived in a little white house. Belinda is a girl, she lived in a little white house. And Belinda is a girl, she lived in a little white house with a little black kitten, and little grey mouse and a little yellow dog and little red wagon and a trilio little pet dragon. She has also little pet dragon. So how many characters are here? Grey mouse, yellow dog, pet dragon, black kitten, Belinda, and then its non-living thing, one wagon. This is the character. These are 5 characters used in this poem. And if you see the literary devices, poetic devices which had been used in this poem, we can say first of all कि हम इसमें देखें कि कौन सा राइम स्कीम इसमें यूज किया। विच राइम स्कीम हैड बीन यूज? व्हाइट हाउस, ग्रे माउस, रेड वैगन, पैट ड्रैगन। राइट, तो हमारे पास क्या आता है? व्हाइट हाउस, ग्रे माउस, यानी ए, रेड वैगन बी, पैट ड्रैगन बी। तो यहां पर कौन सा राइम स्कीम लगी है? ए बी बी। उसके बाद एक और कोई पोइटिक डिवाइस अगर आपके जहन में आ रहा है तो फटाफट से बता दीजिए। यस डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें विद अ लिटिल ब्लैक किटन विद एंड अ लिटिल ग्रे माउस, तो लिटिल 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 लिटिल, these are some one word which had been repeated in here in this stanza. So little is when one word is repeated in a line, in a verse. So with a little black kitten and a little gray mouse, here little and little had been used in one verse, so here we can say it is repetition. And when any word is repeated in different stanzas regularly, that is called refrain. Today we are going to understand that refrain also. So rhyme scheme
as we discussed is house, mouse, wagon, dragon, AABB, here it is. And repetition, word little, and then refrain, repetition of sentence again and again. We will understand it what it is. हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. रेफरेन क्या होता है? इज अ पोएटिक डिवाइस दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल्स इन डिफरेंट स्टैंजास. हाउएवर समटाइम दिस रेपिटेशन में इन्वॉल्व ओनली माइनर चेंजेस इन इट्स वर्डिंग. इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द राइम ऑफ द पोएम एंड एम्फसाइजेस एन आइडिया थ्रू रेपिटेशन. तो रेपिटेशन होता है जब कोई वर्ड डिफरेंट स्टेंजाज में रिपीट हो जाए पर्टिकुलर जगह पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेन. तो हम इसको देखेंगे क्या कि रेफरेन जो है यहाँ पर इस पोएम में यूज हुआ है, तो कहाँ पे यूज हुआ है. ठीक है. सेकेंड स्टेंजा हम देखते हैं. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड लिटिल ग्रे माउस कॉल्ड हिम ब्लिंक. शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. Little yellow dog was sharp as mustard. But the dragon means one animal she have pet dragon, was a coward. Dragon was coward. Yani he was not, that is opposite of brave. बहादुर का opposite है coward, यानी डरपोक भी बोल सकते हैं. And she called him custard. तो different names have been given to her pets by this girl to them. अपने पेट्स को अलग अलग नाम से पुकारती है. तो मैंने एक पिक भी डाली हुई है. ब्लिंक, कस्टर्ड, इंक, येलो डॉग इज मस्टर्ड, ब्लैक किटन इज इंक. याद रखिएगा आप ये. एंड दैट ड्रैगन इज कस्टर्ड एंड ग्रे माउस इज कॉल्ड ब्लिंक. नाउ मूविंग अहेड. एंड लिटरेरी डिवाइसेस सेम, राइम स्कीम इज सेम इन दिस स्टेंजा आल्सो. इफ वी विल लुक एट दिस, was ink, him blink, mustard, custard, right? So AABB, this rhyme scheme had been used in this poem. And then if you can understand any other poetic device which had been used in this poem, तो अगर आप देखें तो yes, of course, alliteration had been used here in this stanza. तो covered and she called him custard. Covered and custard, C, right? Use of C sound यानी कॉन्सोनेंट साउंड जो है यहाँ पे रिपीट हुई है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम? एलिट्रेशन. एक और पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ, सिमिली. डॉग कंपेयर टू मस्टर्ड, यानी डॉग एंड द येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. तो शार्प इतना तेज था जैसे कि मस्टर्ड. तो जैसे हमने बोला सिमिली क्या होता है, जब एज और लाइक लगा के हम कोई दो वर्ड को यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम सिमिली. तो शार्प एज मस्टर्ड, तो यहां पर आ गया शार्प एज मस्टर्ड. तो राइट, तो नाम आ गए, पोएटिक डिवाइस भी आ गया. दूसरा स्टेंजा हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. अब तीसरे स्टेंजा पे जाते हैं. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी जो ड्रैगन का नाम रखा क्या? कस्टर्ड. इसके शार्प टीथ हैं, बड़े शार्प टीथ हैं. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप, और इसके टॉप पर यानी सर पे ऐसे नेल्स जैसी हैं. स्पाइक्स यानी पॉइंटेड, थिन पॉइंटेड सरफेस, या बोल सकते हैं नेल टाइप नेल्स, राइट? स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और इसके नीचे जो है यहाँ पर स्केल्स बनी हुई हैं. ऐसे 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 अगर आप देखें इसकी बॉडी के ऊपर ये पूरे स्केल्स बनी हुई है. अंडरनीथ मतलब होता है नीचे. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, इसके माउथ से जो है फायर प्लेस यानी जो चूल्हा चिमनी लगाते हैं हम घर में, उसकी तरह है. माना जाना जाता है ड्रैगन को इसी के लिए. चिमनी फॉर अ नोज एंड ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टूज, और इसकी नाक से जो है चिमनी यानी वहां से जो धुआं निकल रहा है उसकी नाक से. और ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज शूज टूज. डैगर्स मतलब क्या होता है? अपनी इसकी जो चाकू की तरह तेज. तो इसके जो टूज हैं वो जो पाँव हैं वो चाकू की तरह हैं. तो ये इसका एक फिजिकल अपीयरेंस बताया किसका? ड्रैगन का. तो कैसा है? शार्प टीथ हैं इसके, स्केल्स अंडरनीथ हैं, चिमनी फॉर अ नोज एंड डैगर्स ऑन हिज टूज. तो ये आ गया तीसरा स्टेंजा. राइम स्कीम सेम आ गई, AABB. और बहुत मेटाफर भी यूज हुआ यहाँ पर. ये अगर आप देखें तो माउथ लाइक अ फायर प्लेस. तो क्या कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ? जी हाँ, अगर आप समझ गए होंगे तो सिमिली का यूज हुआ यहाँ पे. रेफ्रेन का फिर यूज हुआ है, जैसे हमने बोला रिलियो ट्रिलियो पहले स्टेंजा में भी हुआ,
दूसरे में अभी इसमें फिर हुआ रेफरेन रिलियो ट्रिलियो का यूज, तो उसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, रेफरेन। मेटाफर का भी यूज हुआ, चिमनी फॉर अ नोज। यहाँ पर चिमनी नोज इज एज चिमनी अगर लगाते तो वो सिमिली बनता, लेकिन चिमली फॉर अ नोज है तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मेटाफर का यूज हुआ है। तो देखते हैं चौथा स्टेंजा क्या बोलता है। ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स। ब्लिंडा इतनी बहादुर है, जैसे कि बैरल मतलब एक ड्रम है, जिस ड्रम में भालू भरे हुए हैं, यानी एक भालू की ताकत नहीं है, बहुत सारे भालुओं की ताकत इस ब्लिंडा के पास है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्ट्रीट्स। और इंक और ब्लिंक यानी ये माउस और केट जो हैं इतने बहादुर हैं, शेर से ये डरते नहीं हैं, लेकिन शेर को ये डराते हैं, शेर को ये भगाते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रिच। तो मस्टर्ड जो है इतना बहादुर है जैसे कि टाइगर गुस्से में होता है, रेज में होता है, एंगर में होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन यहाँ पर भी कस्टर्ड कैसा है, यानी जो ड्रैगन है वो बोलता है मुझे पिंजरे में जाके रखो, मुझे केज में जाके रखो। तो यहाँ पर बहुत सारी सिमिलीज का यूज हुआ है। बैरल एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, राइट। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। तो राइट, तो यहाँ पर फिर सिमिलीज का यूज हुआ है, राइट। तो राइम स्कीम सेम है। एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है। अगर पहली लाइन में आप देखें, ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल, तो बी का यूज हुआ है। तो यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ साउंड वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड होती है, तो उसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। स्टेंजा 5 टोटल, इसमें 14 स्टेंजा, बहुत लेंथी पोएम है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छी तरह समझ पाए आप। स्टेंजा 5, ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। ब्लिंडा क्या कर रही है, इसको टीज कर रही है, तंग कर रही है, और इतना तंग कर रही है, अनमर्सीफुल बड़ा क्रूली तंग कर रही है। किसको तंग कर रही है, ड्रैगन को। क्यों तंग करी, वो समझती है कि ये बड़ा कवड़ है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पार्सिवल। और इंक ब्लिंक जो है और मस्टर्ड जो है वो उसको रूडली यानी बड़े रफली उसको क्या बोलते हैं, अ नाइट इन किंग्स आर्थर्स कोर्ट। अ नाइट, एक वो नाइट जो है, जो कोर्ट का एक वहाँ पर बुलाने पे के लिए होता नाइट, तो उस पैर्सिवल उसको बोलते हैं। दे ऑल सेट लॉफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। तो वो सभी रेड वैगन में बैठ के उसके ऊपर हंसते हैं। एज द रिलियो ट्रिलियो कवर्डली, एट द रिलियो ट्रिलियो कवर्डली ड्रैगन, राइट। तो यहाँ पर फिर रेफरेन का यूज हुआ है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम। यहाँ पर यूज हुआ है, ह्यूमन कैरेक्टर दिया गया डॉग, और इसको मस्टर्ड डॉग और माउस को वो उसको बोल रहे हैं, यानी वो उसको पुकारते हैं पैर्सिवल। तो उसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ। रेफरेन भी यूज हुआ है, राइट। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो टिकल्ड हिम, यहाँ पर रेपिटेशन यूज हुआ है। अगर आप देखें, दे टिकल्ड हिम, बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ, रेपिटेशन का यूज हुआ, रिलियो ट्रिलियो हुआ, रेफरेन का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइस जो इस स्टेंजा में यूज हैं। स्टेंजा 6 के ऊपर हम जाते हैं। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। ब्लिंडा इतना उसको हंसाती है कि पूरा, यानी उसको टिकल करके इतना हंसाती है कि पूरा घर जो है शुक हो जाता है, हिलना शुरू कर देता है। एंड ब्लिंक सैड विक। अब ब्लिंक क्या करता है, वो कहता है विक, हियर इज द जो साउंड, माउस जो साउंड क्रिएट करता है उसको बोलते हैं हम वीक। तो ब्लिंडा ब्लिंक जो है क्या बोलता है, वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। ब्लिंक यानी ब्लिंक यहाँ पर किसको है, केट जो है वीक करता है, और वहाँ पर इस वीक को सुनकर माउस जो है गिगल करता है, यानी हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड, इंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, वो इसकी एज पूछते हैं। आस्क्ड हिज एज विच व्हेन मस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। जब ये कस्टर्ड जो है अपना केज, अपना पिंजरा ढूंढता है, ठीक है। तो गिगल होता हंसाना, विक होता है साउंड मेड बाय अ माउस। लेकिन यहाँ पर ब्लिंक जो है ये बोलता है वीक, जिससे माउस को हंसी आती है, ठीक है।
और फिर जो है इंक और मस्टर्ड जो है उसकी एज पूछते हैं। किसकी एज पूछते हैं? ड्रैगन की एज पूछते हैं। लिटरेरी डिवाइस, राइम स्कीम सेम आ गया। ओनोमोटोपिया, यूसेज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट, गिगल्ड, वीक जैसे, ठीक है। रेपिटेशन यहाँ पर यूज हुआ, नाइस, सेफ, केज, राइट। स्टेंजा 7, सडनली सडनली, फिर देखिए सडनली सडनली आपको दिमाग में आया होगा कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ। सडनली सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर एक अनप्लेजेंट साउंड उनको सुनाई देती है। सडनली सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। अब मस्टर्ड जो डॉग है वो ग्राउल करता है, यानी जब ये बार्क करता है उससे पहले जो घुर्राने की इसकी आवाज़ होती है उसको बोलते हैं हम ग्राउल। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सभी जो है चारों तरफ देखते हैं। सडनली सडनली क्या होता है, एक अनप्लेजेंट, एक बुरी आवाज़ उनको सुनाई देती है। मस्टर्ड ग्राउल करता है और सारे चारों तरफ से देखते हैं। म्याउच क्राइड इंक, इंक क्या करती है? म्याउच, यानी उसके मुंह से ये आवाज निकल जाती है। एंड ओह क्राइड ब्लिंडा, ब्लिंडा भी डर जाती है और वो क्या निकलता है उसके मुंह से? ओह, क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन निकला है तो सडन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स जो होता है उसके साथ हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। म्याउच भी, इसके साथ भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है और ओह के साथ भी। फॉर देयर वाज अ पायरेट, अब ये यहाँ पर कौन आया हुआ था? पायरेट। पायरेट किसको बोलते हैं? डकैत, जो डाकू होते हैं ज़्यादातर, जो शिप्स को लूटते हैं। रॉबर्स जो होते हैं जो समुद्री जहाज़ों को लूटते हैं। तो यहाँ पर कौन आया? पायरेट आया हुआ था। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, अब इस तो विंडो को चेंज किया है, विंडा, इसका राइम मिलाने के लिए ब्लेंडा और विंडा। तो विंडा मीन्स विंडो, विंडो के लिए यूज किया। तो ये विंडो को क्लाइम कर रहा है। कौन क्लाइम कर रहा है? पायरेट, ठीक है। तो सडनली सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक उनने एक बुरी आवाज सुनी। मास्टर ग्राउल करता है, चारों तरफ देखता है। म्याउच क्राइड इंक, ओह क्राइड ब्लिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, राइट। तो कौन से पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुए? राइम स्कीम सेम है। सडनली सडनली यूज ऑफ कॉन्सो, यहाँ पर क्या हुआ है? फिर सडनली सडनली रेपिटेशन यूज हुआ है। ओनोमाटोपिया क्या होता है कि जब यूसेज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट, जैसे मस्टर्ड ग्राउल्ड, म्योच क्राइड इंक, तो यहाँ पर ओनोमाटोपिया इसको हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस, जैसे हमने बोला था रिलियो ट्रिलियो, वहाँ पर हमने रियल और ट्रियल को रिलियो ट्रिलियो बनाया था। यहाँ पर विंडो को राइम करने के लिए इसने विंडा बना दिया, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको पोएटिक लाइसेंस। तो 7 जो हैं हमारे स्टैंजा अभी डिस्कस किए हमने, तो होप कि आपने ये अच्छी तरह सुने हों। नहीं आपको समझ आए दोबारा इस वीडियो को देखें, और कल के लिए जो आपका होमवर्क रहेगा, आज के लिए जो आपका होमवर्क रहेगा, ये जितने भी पोएटिक डिवाइस मैंने स्टैंजा 7 बोले, उनमें जो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं उनको आपने नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट 7 जो स्टैंजा है उनको, और हम देखेंगे कि पायरेट क्या क्या आगे करता है, पायरेट के साथ क्या क्या आगे होता है, या पायरेट इनके साथ क्या क्या जुल्म करता है। ये सब चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।